आई एम हैविंग नंदिका टू रीड द आंसर्स। कहीं कोई डाउट है बेशक एज यूजुअल हमेशा बोलती हूँ मैं, पूछ सकते हो, सो दैट टुडे आई हैव टू कंप्लीट दिस। नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट हमारा शुरू होगा एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट कंप्लीट करने के बाद सरप्राइज टेस्ट होगा एक दिन। Okay, now please Nandika start reading from question number 3, fossilization. What is fossilization? Wait, Harshit, we will not start with the first question because the first question is very easy. So I have not taken that question. This is the variation. ठीक है, वेरिएशन को लेकर क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ये सारे आंसर्स तुम दे दोगे। हमने स्टार्ट करना जो हमें हमारे लिए नया है, दैट इज द फॉसिल्स एंड द फॉसिलाइजेशन। हाँ, what is fossilization? How are fossils formed? The process of fossils formation is called fossilization. Fossils are formed when organisms die, their bodies get decomposed and lost. Sometimes the body or a part of it may be in such an environment that it does not let it decompose completely. The mud will eventually harden and retain the impression of the body parts of the organism. This mud with the impression will be called fossil of the organism. Yes, Shreyansh. This topic is out of the main part evolution. But evolution topic में ये अभी तक clear नहीं हुआ है कि कौन कौन सा part omitted है. तो for the sake of our result, we have to read at least little bit. थोड़ा बहुत तुमको ये पता होना चाहिए कि हमको ये आता है और सडनली अगर कोई क्वेश्चन आ गया उससे 1 मार्क और 2 मार्क्स में, इट विल नॉट कम बाय 3 और 5 मार्क्स, बट अगर उसमें आ गया तो तुम लिखने लायक रहो, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें से अलग नहीं किए हैं, एज इट इज रहने दिए हैं। तो प्लीज इट्स जस्ट अ रीडिंग, आप लोग जरूर इसको पढ़िए, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि हमने नहीं पढ़ा या हमको नहीं आता, हम कुछ तो लिख सकेंगे। फॉसिलाइजेशन ही अगर आ गया तो ये पता होना चाहिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल। ठीक, बस सिर्फ इसके लिए ये एक रीडिंग बस हो जाए। यस, एनालोगस, होमोलोगस। What are homologous and analogous organs? Explain with the help of an example. Homologous organs are those which have similar basic structure and origin but may have different functions. For example, hands of human beings and wings of birds. Analogous organs, organs which have different basic structure and origin but have similar function are called analogous organs. Example, wing of a bat and the wing of a bird, the wings of a bird and the wings of an insect. Differentiate between convergent and divergent evolution. Convergent evolution, adapted for similar functions, has analogous organs but does not indicate any evolutionary relationship between the organisms. Divergent evolution is adapted for different function. Homologous organs are present and they indicate the evolutionary relationship between two species like human beings and apes. What are the different ways in which individuals with a particular trait may increase in a population? Harshit, which one? This last question, question number 5. Okay, so this is the another name of analogous organ and homologous organ. तो जैसे तुमने analogous organ पढ़ा हुआ है तो convergent, और जैसे तुमने homologous organ पढ़ा है that is divergent. अब analogous में हमने क्या पढ़ा हुआ है? Analogous organs which have the different basic structure and origin but similar function. ठीक है, तो उसी का दूसरा नाम है ये एनालोगस। तो अडेप्ट फॉर सिमिलर फंक्शन
पढ़ लिया यहाँ, सिमिलर फंक्शन के लिए है। एंड डू नॉट इंडिकेट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्योंकि फंक्शन सेम है बट इवोल्यूशन इनका सेम नहीं है। डाइवर्जेंट जस्ट होमोलोगस है। जो होमोलोगस में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि दे हैव द सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। तो ओरिजिन आपको यहाँ पर ऑलरेडी बताया है, इंडिकेट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये आपका आ गया कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट अगर आपसे पूछता है तो आप उसमें एग्जाम्पल एनालोगस और होमोलोगस का लिख सकते हो। इज दैट क्लियर हर्षित? गुड। नेक्स्ट, What are the different ways in which individuals with a particular trait may increase in a population? The factors which are responsible for raising a new species are selection of environmental conditions for survival of a particular species. If a variation occurs in a population and that variation results in better survival of the organism in prevailing natural conditions, then the trait would be naturally selected and will be more in population. What are the different theories about origin of life? Theory of special creation. According to this theory, the Almighty God created the life on earth. दिस क्वेश्चन इज कि दुनिया क्या सोचती है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो हम सब क्या जानते हैं, हम अपनी कास्ट के हिसाब से अपना ओरिजिन समझते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद ब्रह्मा जी ने बनाया है दुनिया को। मुस्लिम्स अपने पैगंबर को मानते हैं। क्रिश्चियंस जो होते हैं वो एडम और ईव को लेते हैं। तो ये सब कुछ हम स्पेशल क्रिएशन मतलब भगवान के द्वारा बनाया हुआ हमारे कास्ट के हिसाब से जो रच गया है। Then the second is spontaneous generation. According to this theory, life originates from the non-living material by the process of biogenesis, ring mud, decomposing matter, sun, air and water. ये जो है, this is only the correct process. हम इसको यही समझ सकते हैं कि origin of life ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम तुमको पढ़ाया था तो मैंने मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने एक वाटर रखा हुआ था, वाटर को कुछ समय तक रखा तो उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आना शुरू हो गए। तो ऐसे करके इस दुनिया में एक ओरिजिन शुरू हुआ। दैट फर्स्ट ओरिजिन इज नोन एज कोसरवेट। उस कोसरवेट, उसका नाम था कोसरवेट। तो COECERVATE, दिस इज द स्पेलिंग कोसरवेट। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी तुमको दिखा दूंगी अभी। उसमें यह हुआ था कि उसके अंदर प्रेजेंट था अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, नाइट्रोजन वेस्ट एंड पेंटोज शुगर। तो ये सारा कुछ उसके अंदर प्रेजेंट था, जिसकी वजह से एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आना शुरू हुआ। तो दिस इज द कोसरवेट। तो ये हमारा एक फंक्शन है, एक थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर। नेक्स्ट इज कॉस्मोइजिक थ्योरी। It states that life came to earth from some heavenly bodies in the form of spores or seeds. अब ये हम सोचते हैं कि कभी जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, तुमने एसएसटी में पढ़ा होगा कि कैसे लाइफ इस दुनिया में प्रोड्यूस हुई, कि किस तरह से मिल्की वे गैलेक्सी आया, कैसे अर्थ में वाटर आया। जैसे अभी हम मून में जा रहे हैं, हम मरकरी में जा रहे हैं, सॉरी मरकरी या जुपिटर, किसी में जा रहे हैं ना, मार्स, हाँ मार्स, किसी हम प्लैनेट में जा रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है, क्यों चेक करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लाइफ सर्वाइव हो पाएगी कि नहीं। तो ये एक हो गया कॉस्मोजोइक थ्योरी। Then the next is biogenesis. This theory states that the life originated from the pre-existing life. Obviously, क्योंकि हमने अभी यहाँ पढ़ा हुआ है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसमें हमने पढ़ा बायोजेनेसिस रिंग मड। मतलब हम जो इस दुनिया में आए हैं तो हमारे जो एंसेस्टर्स बने होंगे वो भी सारा कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आना शुरू हुए। तो जो फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ आई उससे ही सारा कुछ प्रोड्यूस हुआ। तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ हमारी सिर्फ एक, हम जो बने होंगे, जब पहला ह्यूमन बीइंग बना होगा तो वो मल्टी सेलुलर तो रहा होगा, बट ये नहीं भूलना चाहिए कि एक मल्टी सेलुलर पहले यूनिसेलुलर रहा होगा। इसलिए दुनिया में जितना भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक दिन एक महीने में नहीं कंप्लीट होता। हर किसी ऑर्गेनिज्म का अपना लाइफ साइकिल है रिप्रोडक्शन का। मैं तुम्हारे ही थ्रू एग्जांपल देती हूँ कि जब तुम अपनी मम्मी के पेट में आए होगे तो तुम भी यूनिसेलुलर थे, ठीक है। फिर
फिर वो यूनिसेलुलर बंदे को या बंदी को टाइम मिला 9 मंथ्स का अपने चारों तरफ नरिशमेंट पाने का, उसके बाद तो मल्टी सेलुलर होकर बाहर आए। ठीक है, तो ये आपका था प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो कि आप एक यूनिसेलुलर से बनना शुरू हुए। बात खत्म? किसी को कोई डाउट इसमें? बायोजेनेसिस, चैट, ओके, सो नो चैटिंग मतलब नो डाउट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब क्योंकि हमारे लास्ट साइंटिस्ट ने हमें इतना कुछ खोज कर दे दिया है, तो अब हमने उसमें नया क्या ऐड कर दिया है? अकॉर्डिंग टू दिस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वाज फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओनली इन सुटेबल कंडीशन। मतलब जो आरएनए बना होगा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो आरएनए एक छोटे से मॉलिक्यूल से बनना शुरू होगा, फिर उस आरएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना डीएनए का, और डीएनए धीरे धीरे ढेर सारे स्ट्रैंड अपने बनाना शुरू कर दिया। ये जब हमको पूरी थ्योरी मिल गई, उसके बाद हमने अपनी थ्योरी उसमें ऐड कर दी कि ऐसा हुआ होगा कि एक सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। हाँ श्रेयांश, ये वीडियो तुमको पोर्टल में मिल जाएगा, मैं हर बार का वीडियो पोर्टल में डालती हूँ, तो ये वाला वीडियो बस नहीं है। यस, नेक्स्ट इज केमिकल इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। चलिए, यस नंदिका। Chemical evolution. It is the formation of the complex organic compound from simple compound or elements. It occurred at the time of origin of life. It is an irreversible kind of evolution. Speed of evolution is faster. In organic evolution, it is the simple formation of complex form of life from simple form of life. It is still occurring. It is reversible. Speed of evolution is slow. केमिकल, ठीक, ऑर्गेनिक। केमिकल से समझ में क्या आता है? इस वर्ड से कुछ केमिकल मिक्स होगा। ऑर्गेनिक से क्या समझ में आता है कि अरे सिंपल लाइफ है, सिंपल हम लोग जो घर में देसी चीजें यूज करते हैं उससे कुछ बना होगा। अभी तुम सिर्फ इसको ऐसे समझो, इवोल्यूशन को अभी भूल जाओ। तो बोलता है इट अकर्ड एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब इसमें 2-3 तरह के केमिकल्स इन्वॉल्व हुए होंगे। मैंने अभी बताया तुमको डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, ये 4-5 चीजें प्रेजेंट होती हैं, तब केमिकली कुछ चीज इवोल्यूशन हुआ होगा। ऑर्गेनिक में ये कभी भी इवॉल्व हो गया, इसकी जरूरत नहीं है किसी को। सेकेंड, इरिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार जरूरी नहीं है कि चारों पांचों आपको केमिकल एक साथ मिले, कोई एक छूट सकता है, इट कैन बी रिवर्सिबल। स्पीड ऑफ इवोल्यूशन इज फास्ट, क्यों? क्योंकि 4 केमिकल जब मिलेंगे तो इवोल्यूशन जल्दी होगा। ये स्लो इसलिए क्योंकि जब तक इसमें पूरे केमिकल इकट्ठे नहीं हो सकते तो इवोल्यूशन कैसे होगा? होगा भी तो प्रॉपर नहीं होगा। जैसे अगर आप देखते हो, मैं इसको दूसरे तरह से समझाती हूँ, आपने देखा है कि कभी कभी प्री मैच्योर बेबी हो जाता है। प्री मैच्योर बेबी क्यों होता है? क्योंकि हम अगर हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होगी, हमारा जो उस 9 मंथ में प्रॉपर जो हम करते हैं खाने को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, काम को लेकर, हम वो नहीं करते, हम कुछ ऐसा करते हैं जो अगेंस्ट प्रेगनेंसी वुमेन्स के अगेंस्ट में होता है, जैसे कुछ भारी उठा लेना या बहुत जोर से चलना, तो उस समय जो बच्चा बाहर आता है वो प्री मैच्योर होता है। अब डिपेंड करता है कि बाहर का जो डॉक्टर्स के पास का जो एनवायरनमेंट है, उसको इंक्यूबेशन में जब रखते हैं, वो एनवायरनमेंट बच्चे के लिए कितना जरूरी, क्योंकि बाहर से तो हमें बच्चा पूरा बना दिखता है, उसकी 2 आंखें होती है, नाक होता है, मुंह होता है, हाथ पैर होता है, बट इंटरनली उसका ब्रेन जो होता है सबसे लास्ट में बनता है। डिलीवर होने के कुछ घंटे पहले तक ब्रेन बनता रहता है, और जब डिलीवर हो जाता है मतलब उसी समय उस बच्चे का लास्ट खत्म होता है डिलीवरी के, मतलब कि बच्चे का ब्रेन अब पूरा कंप्लीट बन गया। बट डिपेंड करता है कि वो 9 मंथ में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं कंप्लीट हो रहा तो बाहर से तो दिख रहा है कि बच्चे का सर बड़ा है, आंख खुली हुई है, बट इंटरनली बच्चा वीक रहता है। तो सेम वैसे ही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या होता है, प्रोसेस तो स्लो होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें आपको कंप्लीट इवोल्यूशन मिलता है कि नहीं। Chemical evolution, it is the formation of complex organic compound from simple compound. तो मैंने अभी तुमको समझाया
कि कॉम्प्लेक्स कहां से निकलता है, सिंपल से। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या हुआ, डीएनए के अंदर के स्ट्रक्चर, तब तो ये बनेगा, और ये बनेगा मतलब ये बार बार नहीं बन सकता। इवोल्यूशन जो है वो बहुत फास्ट होगी, क्योंकि जल्दी से डीएनए क्या होता है, अपने अंदर सडनली चेंज कर देता है। अब मैं तुमको इसको समझा देती हूँ कि डीएनए सडन चेंज कैसे करता है। जैसे कि वायरस का नया स्ट्रेन आया, कोरोना वायरस का, 1 साल पहले कोरोना वायरस का स्ट्रेन था कोविड-19। अब मान लो मैं आज उसको नाम देती हूँ तुम्हारे सामने, अब जो स्ट्रेन आया दैट इज कोविड-21, क्योंकि नया स्ट्रेन तो 20 में आया, लेकिन हम इस साल उसको नाम दे देते हैं 21। अब उसने क्या किया, 1 साल उसने पूरे देश में तबाही मचाई, सारे लोगों के शरीर में घुसा, सबको मारा, कितने लोगों को बचाया, बट किसी एक की बॉडी ऐसी थी जो कि उस वायरस के डीएनए में चेंजेस पैदा कर दी, और जो चेंजेस पैदा किए वो चेंजेस हुआ म्यूटेशन की वजह से। डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं उसमें AGTU, मैं बहुत आगे का पढ़ा रही हूँ, बीच में मत पूछना कि AGTU क्या होता है, मैं सिर्फ बता रही हूँ नाम, AGTU। अब ये AGTU में अगर इसका सीक्वेंस जो है U की जगह आ गया A मान लो, तो ये A जो सीक्वेंस आया, क्योंकि सीक्वेंस था AGTU, तो दूसरा जो सीक्वेंस आएगा वो अगेन AGTU का होगा, बट AGTU के पीछे U गायब हो गया और A दोबारा आ गया, और फिर बना AGTU, फिर अगेन बना AGTU। तो ये तुमको मैंने नाम दे दिया, AGTU गायब, उसकी जगह पे AGTU एंड देन अगेन AGTU। तो सीक्वेंस जो था वो था AGTU का, उसकी जगह पे U की जगह पे दोबारा से AGTU आ गया। तो मतलब डीएनए जो चेंज हुआ अपना कोरोना वायरस का, वो वैसे ही हुआ, किसी एक की बॉडी में उसको ऐसा चेंज मिला कि वो म्यूटेट हो गया, म्यूटेट होने से उसने अपना रूप उग्र दिखा दिया। अब क्योंकि वो बॉडी मान लो मेरी है, मैं जिससे जिससे मिलूंगी मैंने उसको वो बीमारी फैला दी, क्योंकि अभी हम पहले वाले कोरोना वायरस से ऑलरेडी जूझ रहे थे, दूसरा कोरोना वायरस नया आ गया। अब डिपेंड करता है कि जो हमने वैक्सीन लिया है वो वैक्सीन हमारे कोरोना वायरस से लड़ सकता है कि नहीं, जो हमें नया आया है, पिछले वाले के हिसाब से हमने बनाया था उस वैक्सीन को। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा केमिकल इवोल्यूशन। मैं ये नहीं पढ़ा रही हूं, ये तुमको पता है, इसको छोड़ रही हूं, आगे बढ़ते हैं। 3 लॉज ऑफ मेंडल, इसको भी हम छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं इन द सेंस ये सारा क्वेश्चन तुमको आता है, मैं समझा चुकी हूं, मैं इस पे टाइम नहीं लूंगी, हमें आगे बढ़ना है। ये वाला क्वेश्चन भी आता है, तो सिर्फ एक रीडिंग करवाना चाहती हूं मैं कि इसमें सिर्फ एक रीडिंग हो जाए, बट ये क्वेश्चन अगर आ गया तुम्हारे एग्जाम में, सिर्फ ये नहीं लिखना है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, डायग्राम ड्रॉ करना है। Describe how the sex of the offspring is determined in the zygote in human beings. The males can produce 2 types of gametes, either X type or Y type. The females produce only 1 type of gamete or ova, the X type. If the X type sperm fuses with the ovum, then the sex of the baby will be a female. If the Y type sperm uses to fuse itself with the ovum, then the sex of the baby will be male. Sex of the baby is decided at that time. Sex of the baby is decided at the time of fertilization. ये मैंने लास्ट में तुमको जो बताया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन कि कैसे होता है, क्यों चेंजेस आता है, ये उससे रिलेटेड है। सुटेबल एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ या फॉर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो ये मैं तुमको समझा चुकी हूँ। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब कोई अगर मान लो नेपाल का यहाँ आ गया तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, यहीं पर आके बस गया, उसकी यही फैमिली सर्वाइव होने लगी, 2-3 जनरेशन आ गए, तो जेनेटिक डिफरेंस। हाँ, बीटल वाला एग्जांपल, यस 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 हर्षित, समझ गए तुम। इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा द स्टेट द इवोल्यूशनरी फोर्स विच लीड्स टू द ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। म्यूटेशन मैंने अभी समझाया, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऐसे हो सकता है। फॉसिल्स, हाउ डू फॉसिल्स टेल्स अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, अभी भी ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो डिफरेंस देख लो, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब 2, हैप्लॉयड मतलब 1। यस,
Nandika. The difference between diploid and haploid are diploid has two chromosome set. Chromosomes are present in pairs formed during mitosis, and it is found in human beings and higher plants. Haploid has only one chromosome set. Chromosomes are present singly, formed due to meiosis, and it is found in lower plants. हाँ, यस श्रेयांश, फर्स्ट और सेकंड सेट इसलिए इसने क्लियरली बताया, टू क्रोमोसोम सेट नहीं समझ में आता, तो द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन पेयर। इसको तुम, ये प्लांट में एग्जांपल दिया हुआ है, इसको तुम अगर ह्यूमन बींग्स में लोगे तो तुम्हारे सामने जो हम गैमीट होता है एक्स एंड वाई, तो ह्यूमन बींग के अंदर फीमेल्स में होता है ओवम में एक्स एंड द स्पर्म इज कैरिंग एक्स और वाई, तो ये दोनों हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, इस बात को याद रखना। जब ये फ्यूज हो जाते हैं देन इट बिकम्स अ डिप्लॉइड इन नेचर, उसके बाद धीरे धीरे ये गैमीट से जाइगोट बनते हैं। This who disproved the Lamarckism and how? मैंने अभी तुमको बताया था उस दिन जब हम डिस्कस कर रहे थे कि किसने मेंडल को प्रूव किया कि तुम गलत हो, तुम्हारे सारे कैरेक्टर्स जो थे वो पी प्लांट में निकल रहे थे, लेकिन जब दूसरे किसी प्लांट में जा रहे थे हम, तो उसमें उसके कैरेक्टर गलत हो रहे थे। तो लेमार्क ने ये प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ वेस्टमैन कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये उन्होंने प्रूव किया था। He cuts the tail of a rat at the time of birth and continued this for 21 generation. हाँ, अब उस रैट को 21 टाइम्स रिप्रोड्यूस करवाया गया और हर बार उन्होंने रैट का पूंछ काट दिया, बट टेललेस रैट्स वर नेवर बोर्न। उसकी जितनी बार भी उसकी पूंछ काटते थे, हर बार जब वो नए बच्चे को जन्म देती थी उसमें टेल आता था। इससे ये पता चला दिस ट्रेट्स डू नॉट चेंज द डीएनए ऑफ द जर्म सेल। हम उसकी पूंछ काटेंगे तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में कटी पूंछ का बच्चा आएगा, सो कैन नॉट बी इनहेरिटेड। Hence the change in non-reproductive tissue of an individual during its lifetime cannot be passed on to its progeny and cannot direct evolution. तो इन्होंने ये सोचा कि ये कुछ ऐसा करेंगे, तो ये मेंडल्स को तो प्रूव गलत किया ही किया कि तुम्हारा नॉन रिप्रोडक्टिव तरीका था ये रिप्रोड्यूस करना, मतलब उसमें से नया बच्चा लाना और उसके जीन्स में कुछ चेंज करना। लेकिन इन्होंने क्या किया, जितनी बार रिप्रोड्यूस किया उसके बॉडी के एक पार्ट को कट किया कि जिससे कि नेक्स्ट उसमें नहीं आए। सेम हम देखते हैं छिपकली के साथ, जो हमारे घर में वॉल लिजार्ड्स जो रहते हैं उनकी पूंछ कट के गिर जाती है लेकिन दोबारा रीजनरेट हो जाती है। ऐसा होता है क्या कि जब वो नए बार बच्चे देगी तो क्या उसकी पूंछ नहीं होगी? सबकी पूंछ होती है। This is how does the Archaeopteryx provide evidence for organic evolution? Archaeopteryx is a connecting link between a bird, ठीक है, तो this shows that birds are closely related to the reptiles. Archaeopteryx का पिक्चर देखिएगा, इसकी स्पेलिंग याद रखिए, ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि नेम द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, नेम द मतलब ऑर्गेनिज्म हु इज हैविंग द कनेक्शन लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल्स। वो मुंह से तो रेप्टाइल जैसे दिखता था लेकिन उड़ने वाली उसकी हरकत थी, उड़ता था वो, तो उसका नाम था दैट इज आर्कियोपेरिक्स। Has some features of reptile, characters of dinosaurs as well as some features of birds like wings. This shows the birds are closely related to reptiles and birds could evolve from the reptiles. Again same question, divergent evolution बता दिया है मैंने, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर अपलोडेड वीडियो में चेक कर लेना इसका आंसर। What is reproductive and non-reproductive variation? Yes, Nandika, please read. Non-reproductive. Non-reproductive variation. It has variation in somatic cells. It is not passed from one generation to the other generation because they do not change the DNA of the germ cells. Die with the death of the organism. I'm scrolling.
cannot be cannot be in direct evolution. Reproductive variation. Reproductive variation, it has variation in germ cells. It is passed down from one generation to the other generation because there is change in the DNA of the germ cells. These do not die with the death of the organism. It can direct evolution. किसी को कोई डाउट इसमें? Right, similarities between Mendelian factors and genes. Mendel proposed the inheritance of traits from parents to offsprings by hereditary units called factors. Mendel suggested that every character is controlled by a pair of factors. Sutton and Boveri in 1902 found striking similarities between the behaviors of Mendelian factors and the chromosomes during meiosis and fertilization. Factor and chromosomes are present in paired condition in the parents, separate during meiosis and again get paired after fertilization. How does the creation of variations in a species promote survival? Depending on the nature of variations, different individuals would have different kinds of advantage to adjust in particular habitat. Variation help in the individual to have different traits that may develop in the organism and are more tolerable. Leave this question. ये पता है तुमको inheritance? हाँ, this question is an important question. 24th. A man with blood group A marries a woman with blood group O, and their daughter has a blood group O. Is this information enough to tell you which of the traits of blood group A or O is dominant or recessive? Why or why not? No, the information is not enough because the blood group is determined by a pair of genes. One inherited from mother and the other from the father. In this case, the child inherited the gene for O blood group from mother as well as the father. This question again leaving 25th. What factors would lead to the rise of new species? बता चुका है मैंने तुमको. Genetic drift, natural selection, changes in the numbers of chromosome. This is the repeated question. 27th. 28th is 28th पढ़ना है. Will geographical isolation be a major factor in the speciation of an organism that reproduces asexually? Why or why not? Yes, due to geographical isolation, the two populations are separated. The levels of gene flow between them will decrease. The isolated population will breed with the local population, resulting in an entry of an isolated population into the new population. A study found that children with light-colored eyes are likely to have parents with light-colored eyes. On this basis, can we say anything about whether the light eye color is a trait that is dominant or recessive? Why or why not? No, since two copies of traits are inherited from one parent each, one from the mother and the other from the father, unless we know the nature of these two variants of traits, we cannot tell which is dominant and which is recessive. Recessive traits appear when both the parents contribute to the recessive allele. From this statement, we can only presume that both parents are contributed to the recessive allele. Okay. So this question, I am showing you this question once again. A study found that children with light-colored eyes are likely to have parent. Light मतलब हम किसी को भी foreign में लोगों को देख सकते हैं कि light colored होते हैं with the light-colored eyes. Parents का भी light-colored है और parents बोल रहे हैं मतलब दोनों का light-colored है तो बच्चे का भी light-colored है.
On this basis, can we say anything about whether the light eyes color trait is dominant or recessive? क्या हम बता सकते हैं? But अब क्योंकि हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, since two copies of traits are inherited from the parents, दोनों आए हैं, one from mother and other from father, unless we know the nature of these two variants of traits cannot tell which is dominant. क्योंकि दोनों पेरेंट्स की आंखें जो थी वो लाइट शेड थी. लाइट शेड थी मतलब जो डोमिनेटिंग है वो भी लाइट है, जो रेसेसिव है वो भी लाइट है. अब हमको ये नहीं पता है कि हम उसको डोमिनेटिंग बोले, क्योंकि जब आप फादर की आईज को देखोगे तो वो आपको डोमिनेटिंग लग रही है, मदर की आईज को देखोगे तो वो आपको डोमिनेटिंग लग रही है. बट क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स बच्चे में आ गए हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो डोमिनेटिंग है. अल्टीमेटली हमारे पास क्या बच जाता है फिर? रेसेसिव. तो दोनों कैरेक्टर्स की आंखों में रेसेसिव ट्रेट, इसीलिए क्योंकि दोनों को सेम माना गया है, तो रेसेसिव ट्रेट्स अपीयर व्हेन बोथ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट रेसेसिव एलील. ये कंडीशन होती है जब दोनों पेरेंट के पास में रेसेसिव एलील हो. अगर मैं तुमको एग्जांपल देती हूं, अगर फादर को एनीमिया है, ठीक है, कैरियर्स, और मदर को कंप्लीट एनीमिया, क्योंकि जो मेल होते हैं वो सिर्फ कैरियर हो सकते हैं एनीमिया का, वो कंप्लीटली एनीमिक नहीं हो सकते. और मदर जो है वो कैरियर होती है, क्योंकि जो एनीमिया है दिस इज द सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल डिजीज. इसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल डिजीज. तो जो मदर है उसको तो होता ही होता है एनीमिया, बट फादर कैरियर हो सकता है. क्यों? क्योंकि हो सकता है फादर के मम्मी को ये रहा होगा और वो जो कैरेक्टर है फादर में आ गया. अब आप ये समझो कि जो बच्चे होंगे उसमें अगर मान लो एक बेटा और एक बेटी होते हैं तो डैम श्योर है जो बेटी होगी उसको ये होगा प्रॉब्लम एनीमिया का इन फ्यूचर. कभी भी जरूरी नहीं कि पैदा होते साथ हो जाए. जो बेटा होगा वो भी कैरियर होगा, क्योंकि ये मेल्स में होता नहीं है, लेकिन अगर फादर को है तो ये बच्चा बेटा जो होता है ये उसको कैरियर माना जाता है, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है. ऑटोसोमल मतलब कि कंपलसरी ये आएगा, डिपेंड करता है रेसेसिव है तो किसमें आता है और कौन कैरियर हो सकता है. ठीक है, तो उसी कंडीशन में हम इसको भी ले सकते हैं कि ये रेसेसिव क्यों है, क्योंकि फादर को भी आईज शेड लाइट है, मदर को भी आईज शेड लाइट है. तो अब दोनों को आप रेसेसिव लेकर चलोगे, डोमिनेटिंग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर ही शो होता है पेरेंट में जब बच्चे में जब वो दोनों पेरेंट में हो. ठीक, तो ये है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि रेसेसिव ट्रेट्स अपीयर व्हेन बोथ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट रेसेसिव एलील. अगेन दिस आंसर एनालोगस होमोलोगस. यस हर्षित, अनीमिया हर किसी को हो सकता है, मेल्स को भी अनीमिया हो सकता है, बट मेल्स के अंदर क्या होता है, मेल्स के अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है, वो अपने आप में उसको रीजनरेट करते हैं और वो कैरियर हो सकते हैं, बट उनको एनीमिया होता नहीं है. फीमेल्स के अंदर क्या होता है, एक्सेस फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सेकेंड कंडीशन, वैसे ये सेकेंड कंडीशन होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन कि अगर वो क्या बोलते हैं आपके पेरेंट्स से आया हुआ है, एंड थर्ड कंडीशन ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट. ये कुछ कंडीशंस होती है एनीमिया के लिए. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what evidence do we have the origin of life with animate inanimate matter. तो मैंने अभी तुमको कोसरवेट के बारे में बताया, और ये इन लोगों ने मिलर और यूरेन एक्सपेरिमेंट किया था. जो सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, चक्कर आना, मुंह सूखना, भूख नहीं लगना, और हर समय ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा जाना, ये सारे सिम्टम्स हैं अनीमिया के. चलो मैं ये तुमको जल्दी से समझा देती हूँ. मिलर और यूरे ने क्या किया था, दे assembled an atmosphere similar to that thought to exist in early earth over water. मैंने जैसे तुमको बताया था उन्होंने वाटर रखा. This was maintained by them at a temperature just below
100 डिग्री, जो टेम्परेचर था 100 डिग्री के नीचे था, एंड स्पार्क वर पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस टू स्टिमुलेट लाइटिंग। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक लाइट पास ऑन किया जिससे कि अंदर लाइटनिंग हो। एट द एंड ऑफ द वीक दे फाउंड दैट 15% ऑफ द कार्बन हैड बीन कन्वर्टेड टू सिंपल कंपाउंड। तो जो कार्बन प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग अमीनो एसिड विच मेक अप प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। मैंने तुमको इस पे ये समझाया था कि इन लोगों ने एक जगह वाटर इकट्ठा करके रखा। वो वाटर, क्योंकि हमको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर बॉईल होता है, तो जब वाटर बॉईल हो जाएगा तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आ पाएंगे। तो वो क्या किए, उन्होंने सिंपल ऐसा वाटर रखा और एक जगह ऐसा टेम्परेचर क्रिएट किया जहां पर वो 100 डिग्री से कम था, क्योंकि 100 डिग्री तक, 100 डिग्री के नीचे